Hello friends, I am Nisha Sharma. The topic under discussion today is Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ऐसे विजन फॉर 2020 हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है. Therefore, it becomes necessary for us to at least get aware or to get at least with informed about APJ Abdul Kalam's personal life. APJ Abdul Kalam's family history and early life. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 to a Tamil Muslim family in Rameshwaram, then in Madras Presidency in British India and now in Tamil Nadu. His father's name was Jainulabdin, who was a boat owner and imam of a local mosque. उनके पिताजी एक नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम थे. His mother's name was Ashiamma, who was a housewife. Abdul Kalam was the youngest of 5 siblings. 5 बहन भाइयों में ये सबसे छोटे थे. His ancestors had been wealthy traders and landowners with numerous properties and large tracts of land. उनके पूर्वज बहुत ही अमीर व्यापारी और जमींदार थे जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में भूमि और धन था. But by 1920s, his family had lost most of his fortune. Their business failed, and by the time Abdul Kalam was born, they were in the stage of poverty-stricken. To help the family, Kalam started selling newspapers at an early age. और परिवार को सहारा देने के लिए कलाम ने छोटे ही उम्र में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया. In his school days, Kalam had average grades but was described as a bright and hard-working student who had a strong desire to learn. अब देखिए, केवल ग्रेड्स कुछ नहीं होते हैं. अगर आपका माइंड शार्प है और अगर आप मेहनती विद्यार्थी हैं, ये हमें कलाम से सीखने को मिलता है कि उनके ग्रेड्स एवरेज थे पर फिर भी उन्हें मेहनती और होशियार बच्चे के रूप में माना जाता है जिसमें सीखने की उत्कट इच्छा थी और सबसे प्रिय विषय उनका गणित था. और उन्हीं का ही एक कोट है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस एंड इररिलेवेंट एंड नॉलेज विद एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी. अगर हमने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया है और हम उस ज्ञान का कोई काम में नहीं लेते, बिना किसी काम के उसको पढ़े रहने देते हैं, तो वो ज्ञान महत्वहीन है, बेकार है. पर यदि ज्ञान को हम काम लें तो वही ज्ञान गरीबी को अमीरी में बदल देता है. और ये आप देख ही रहे हैं कि कहाँ वो एक न्यूज़पेपर सेलर थे और कहाँ वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए. Education gives you wings to fly. Achievement comes out of fire in our subconscious mind that I will be. शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें पर देती है, पंख देती है उड़ने के लिए. परंतु उपलब्धियां हमें कब मिलती हैं? जब हमारे अवचेतन मस्तिष्क में यह अग्नि प्रज्वलित हो कि मैं जीतूंगा, कि जीत मेरी है. During his third year of graduation, he was assigned a project to design a low-level attack aircraft together with a few other students. Their teacher had given them a tight deadline for completing the project. It was very difficult. Kalam worked hard under immense pressure and finally completed his project within the stipulated deadline. The teacher was impressed by the dedication of Kalam. अब देखिए, यदि आप में किसी चीज के प्रति डेडिकेशन है, समर्पण है और आप पंक्चुअलिटी को मानते हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं है. जब वो थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में थे, टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और टीचर ने वार्न कर दिया, एक लिमिटेड टाइम दे दिया कि उस डेडलाइन में काम पूरा करना है.
काम मुश्किल था पर कलाम ने उसे करके दिखाया और टीचर उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। Kalam wanted to become a fighter pilot, but he got 9th position in the qualifiers list and only 8 positions were available in the IAF. हमें जीवन में जरा सी असफलता मिल जाती है तो हम निराश हो जाते हैं, पर आप देखिए कलाम जो थे वे फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पर पायलट के लिए केवल 8 पोजीशंस अवेलेबल थी इंडियन एयर फोर्स में, जबकि कलाम 9वें नंबर पर थे, पर फिर भी वो निराश नहीं हुए। नाउ हिज करियर। APJ Abdul Kalam had completed his graduation in 1957 from the Madras Institute of Technology, and in 1958 as a scientist, he had joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization, DRDO. In the early 1960s, he worked with the Indian National Committee for Space Research under the renowned space scientist Vikram Sarabhai. He was not much satisfied with his work at DRDO, and when he received transfer order to the ISRO in 1969, he became happy. There he served as the project director of the SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit in July 1980. It is India's first indigenously designed and produced a satellite launch vehicle. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. अब देखिए कलाम का क्या कहना है, सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपना तो वो है जो आपको सोने ही ना दे। Under the leadership of Abdul Kalam, the project of IGMDP proved to be successful by producing missiles like the first Prithvi missile in 1988 and then the Agni missile in 1989. Due to his contribution, he was known as Missile Man of India. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और बाद में अग्नि मिसाइल जो है उसको सफल उसका प्रत्यारोपण किया, उसको प्रोड्यूस किया, और उनके इसी योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में माना जाता है। Due to his contribution, the government of India awarded him the highest civilian award. Abdul Kalam played a major role in conducting the Pokhran, a series of 5 nuclear bomb test explosions in May 1998. With the success of these tests, he got the status of a national hero, and then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee declared India a full-fledged nuclear state. और 1998 में पोखरण में भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किए, और उनकी सफलता के कारण ही भारत में उनका दर्जा एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में हुआ, और उन्हीं के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत को पूरी तरह एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया। Not this much. APJ Abdul Kalam in 1998 proposed a country-wide plan called Technology Vision 2020 to make India a developed nation by the year 2020, and suggested nuclear empowerment, various technological innovations, improvement of agricultural productivity, etc. 1998 में उन्होंने देशव्यापी एक योजना बनाई जिसे उन्होंने तकनीकी स्वप्न 2020 का नाम दिया, जिसका उद्देश्य भारत को 2020 तक न्यूक्लियर पावर के रूप में शक्तिशाली बनाना, साथ ही कई तकनीकी प्रयोग करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कृषि के क्षेत्र में सुधार करना इत्यादि थे। और वो क्या कहते हैं, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी
if my definition to succeed is strong in, कि फेलियर मुझे कभी भी जीत नहीं सकता अगर सफलता की मेरी परिभाषा बहुत स्ट्रॉन्ग है. Now, as President of India, in 2002, the National Democratic Alliance was in power and nominated Dr. APJ Abdul Kalam for the post of the President of India. Being a popular national figure, he won the presidential election easily. 2002 में एनडीए जो कि पावर में थे, उन्होंने मनोनीत किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और क्योंकि वो एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता थे, इसलिए उन्होंने भी बड़ी आसानी से ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता. Dr. Abdul Kalam served as the President of India from 25th July 2002 to 25th July 2007. He was the first scientist and the first bachelor to occupy the Rashtrapati Bhavan. He was the 11th President of India and elected against Lakshmi Sehgal in 2002. Before becoming the President of India, he worked with ISRO and DRDO. A leader must have a vision for an organization, passion to work for achieving the goals, curiosity to travel an unexplored path, and courage to take decisions. एक नेता में क्या गुण होने चाहिए, ये वो अपनी बातों में स्पष्ट करते हैं. वो क्या कहते हैं? संगठन के लिए उनके मन में एक परिकल्पना या दृश्य होना चाहिए. काम करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, और अनजाने रास्तों पर चलने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, और निर्णय लेने का साहस होना चाहिए. He received the prestigious Bharat Ratna and became the third president to receive the highest civilian honor after Dr. Sarvepalli Radhakrishnan in 1954 and Dr. Zakir Hussain in 1963. उन्हें सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, और वो तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला. पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को मिल चुकी है. और डॉक्टर कलाम लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है. Over the course of his 5-year term, he remained committed to his vision of transforming India into a developed nation. और अपने 5 वर्षों की अवधि के प्रेसिडेंट की अवधि के दौरान वो लगातार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ही लगे रहे. इसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी उन्हें प्रेसिडेंट बनाने की चर्चा थी, पर उन्होंने उससे इनकार कर दिया. पोस्ट प्रेसिडेंसी पीरियड. आफ्टर लीविंग the office, Dr. Abdul Kalam chose the academic field and became a visiting professor at the Indian Institute of Management, Shillong, the Indian Institute of Management, Ahmedabad, the Indian Institute of Management, Indore, and honorary fellow of the Indian Institute of Science, Bangalore. He also served as the Chancellor of the Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram, Professor of Aerospace Engineering at Anna University, and an adjunct at many other academic and research institutions across India. Now, how he died. On 27th July 2015, Dr. Abdul Kalam was delivering a lecture at IIM Shillong, where he suffered a heart attack and his condition became critical. So he was shifted to hospital, where thereafter he died of cardiac arrest. 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे. अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया. उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो गई और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया. वहाँ पर हार्ट अटैक के कारण ही उनकी डेथ हो गई. His last words to Srijan Pal Singh were, "Funny guy, are you doing well? It is very easy to defeat someone.
बट इट इज वेरी हार्ड टू विन सम। और देखिए थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। क्या कहते हैं, किसी को हराना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना, मतलब जीतने से मतलब किसी के दिल को जीतना बहुत मुश्किल है। Sometimes it is better to bunk class and enjoy with friends, because now when I look back, marks never make me laugh, but memories do. और एक बात उन्होंने और कही कि कई बार क्लास को बंक करके मित्रों के साथ आनंद उठाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंकों से मुझे कभी खुशी नहीं मिली, अंकों ने मुझे कभी नहीं हंसाया, पर यादें आज भी हंसा डालती हैं। Dr. Kalam's 79th birthday was recognized as World Students' Day by the United Nations. He was also nominated for the MTV Youth Icon of the Year in 2003 and in 2006. As we know that Dr. Abdul Kalam was the youngest child in his family and was close to his parents and his brothers and sisters, he never married and served his relatives whole life. अब देखिए सेवा की भावना, सबसे छोटे थे और माता पिता भाई बहन थे, उन सबको सर्व करते रहे, कभी उन्होंने विवाह नहीं किया। नो डाउट ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन विद अ सिंपल लाइफ स्टाइल। ही ऑन, और देखिए उनकी विरासत क्या थी, ए फ्यू पोजेशंस इंक्लूडिंग वीणा एंड कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये उनकी वसीयत थी। He was a kind-hearted man, a vegetarian, and consumed simple food. For a great man, religion is a way of making friends. Small people make religion a fighting tool. आज के समय में उनकी ये बात कितनी महत्व की साबित होती है। देखिए वो क्या कहते हैं, महान व्यक्ति के लिए धर्म जो है दोस्त बनाने का रास्ता है, और छोटे व्यक्तियों के लिए, क्षुद्र व्यक्तियों के लिए धर्म जो है एक लड़ाई का माध्यम है। According to S.M. Khan, who was close to Dr. Abdul Kalam, who wrote a book, The People's President, on Abdul Kalam, says he lived the life of a true Muslim, but had high respect for all other religions and believed that humanism is the biggest quality of a human being. और एसएम खान जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम पर एक पुस्तक लिखी है, उनका क्या कहना है कि उन्होंने एक सच्चे मुसलमान का जीवन जिया, परंतु वे दुनिया के अन्य धर्मों की बहुत इज्जत करते थे और मानते थे कि मानवता जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ही वुड परफॉर्म नमाज एवरी डे बट ऑल्सो रीड भगवद गीता। भगवद गीता, नमाज तो करते ही करते थे, पर भगवद गीता भी पढ़ते थे। प्लेइंग वीणा हैज नथिंग टू डू विद religion. For him, religion was a personal matter and used to emphasize that one should not make it a matter of pomp and show. वो क्या मानते थे कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और लोगों को उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। He used to say, in your dealings with society, you have to be a humanist. और उनका कहना था सोसाइटी के प्रति अपने डीलिंग्स में आपको एक मानवतावादी होना चाहिए। Dr. Kalam often used to cite the story of how his mentor Vikram Sarabhai asked for church land for scientific research and got it, because the bishop believed that both science and spirituality seek the Almighty's blessings for human prosperity, mind and body. और वो एक वक्तव्य बताते थे कि उनके मेंटर विक्रम साराभाई ने चर्च की जमीन की डिमांड की साइंस लेबोरेटरी के लिए, और वो उन्हें मिले भी, क्योंकि चर्च के जो बिशप थे उनका ये मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। किसके लिए? मानव के प्रॉस्पेरिटी के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ ऐसे कोट्स हैं जो किसी के लिए भी इंस्पिरेशन का कार्य कर सकते हैं। Don't take rest after your first victory
because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. हम विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहते थे, कभी भी अपनी पहले विजय के बाद आराम मत करो। हमें क्या लगता है एक विक्ट्री हमारे भी और हम शांत हो गए। वो कहते हैं नहीं, अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो अधिकतर लोग क्या कहेंगे कि ये तो बाई चांस बाय लक आपकी पहली विजय आपको हासिल हुई। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। स्वप्न देखो, किसी भी चीज के बारे में देखते रहो, क्योंकि स्वप्न विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार कार्यों में परिलक्षित होते हैं। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा फेल की है कि कभी भी असफल हो जाओ तो सरेंडर मत करना, काम मत छोड़ देना, निराश मत हो जाना, क्योंकि फेल का मतलब है सीखने का पहला प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. ईश्वर ने हम सभी को समान टैलेंट नहीं दिया, पर हमारे को समान अवसर दिए हैं कि हम अपने टैलेंट को विकसित कर सकें। All birds find shelter during the rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. कि बाकी सारे पक्षी जो हैं उन्हें बारिश में शेल्टर मिलता है, शरण मिलती है, पर ईगल सबसे अलग है। बाज क्या करता है, बारिश से बचने के लिए वो बादलों के ऊपर उड़ता है। एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। उत्कृष्टता जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दुर्घटना नहीं। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस। आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है, क्या हम नहीं रियलाइज करते हैं? My vision, my 2020 vision for India is to transform it into a developed nation that cannot be abstract, it is a lifeline. 2020 का मेरा स्वप्न भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना है, और ये अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये लाइफलाइन है। The Union Minister for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar, released the first look of the biopic of Dr. APJ Abdul Kalam in New Delhi on 9 February 2020. The title of the film is APJ Abdul Kalam, The Missile Man. It is a joint venture between Hollywood and Telugu film industry and will release by the end of 2020. देखिए ये था हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और उनकी लाइफ अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है हम सबके लिए कि हम चाहें तो बहुत कुछ प्रेरणा इससे ले सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका जो विजन है 2020 में भारत के लिए, उसे देखेंगे। थैंक यू।